Now, okay. Okay. So, my dear students, in today's class, we are going to study about some vital things. I mean, we have completed tense fully, but in today's class, I am going to give you something unique, which is very vital and significant for the sake of your English. Mr. Ahmad, please stand up. I ask you some questions and you have to answer me. What is date today? Mr. Ahmad, what is date today? It is 2 December 2024. Good, excellent. Sit down. Stand up. Tell me, which day is it today? Which day is it today? It is? Excellent. Sit down. Stand up. It's your time to tell me, which day was it yesterday? It was? It was Sunday yesterday. Right. Sit down. Sartaj, stand up. Now tell me, last question. Which day will it be tomorrow? It will be Tuesday tomorrow. Correct. Sit down. My dear students, we have completed tense fully, but in today's class, we will revise those all tenses in a perfect way, and except that, I am going to teach you one more thing. In today's class, I will teach you about on. So let's know about that. Now see, now let me tell you, we have completed tense, and in today's class, we will revise those all tenses in a brilliant way, and after that, I will teach you about on. Ahmad always ask me one question, sir, teach about this. So I thought I must teach about this today. So we should move on. And let me tell you, after studying this on, you can't forget that. And because I will teach about this in a brilliant way, and I'm sure, trust me, after studying about this, even wanting, you can't forget that in your life. So let's move on. Now see, अपना, अपने, or you can say अपनी. My dear students, I request you all keep quiet for 30 minutes, okay? And after that, as much as you want to talk to your friends by going outside, you can talk to them. Now, on का मतलब होता है अपना, अपने और अपनी. Except this, let me tell you one thing. Someone has rightly said, actually, you all have to understand the meaning of this. आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कलम के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न पिता के नाम काम आता है. सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है. इट मीन्स if if you don't have knowledge, but on the other hand, if you are so beautiful, you have properties, but indeed you don't have knowledge,
then nobody will respect you, nobody will give you money. So, in this society or in this world, your knowledge will be worshipped, not your beauty. So, always remember, try to enhance, try to boost your knowledge as much as possible. Let's move on. Now see, revision and use of on. अगर इसकी बात करें तो अपना अपने अपने, and except this let me remind you one more thing. पहले टेंस को ही एक बार रिवाइज कर ले, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन. Complete this one first of all because we have less time. Start writing. Yes, start writing. On is used after possessive adjective. On is used after possessive adjective. It's your time to understand after all what is possessive adjective. I have taught you all many times about possessive adjective, but once again I will explain about this. एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा आखिरकार होता क्या है, because we will use on after possessive adjective. Try to complete soon. Did you write? Try to complete, my dear students, soon. Did you write? Now see. Possessive adjective. नो, आप लोग इसे लिख लिए हैं. अब इधर जो मैं लिख रहा हूं, यू कैन नोट डाउन दिस वन इन अ साइड. पोसेसिव एडजेक्टिव आफ्टर, हम नीचे भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एग्जाम्पल दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस को रखा है. आप लोग यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं. नाउ सी, माई, आवर, योर, हर, हिज. अब ये सारे के सारे आपके क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है. एक्सेप्ट दिस, देयर, एक देयर भी है. Now see. Did you write? Try to complete soon. Before studying about on, I would like to give you some examples, and after that we will move on. राम अपना काम करता है. वे लोग अपना घर बनाते हैं. वह अपना खाना बनाती है. Now, did you write? Try to complete. You are not writing. Why? Try to complete.
Did you complete? Now try to understand. Stand up, Ahmad. Tell me about first sentence. How to translate? राम अपना काम करता है, कैसे हम इसे बनाएंगे? You can't use is in this sentence. Actually, first sentence is coming from simple present tense. आपको पता होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. राम अपना काम करता है. देखिए सबके अंत में ता है, ते है, ती है आया हुआ है. आपको पता होगा कि जिसके अंत में ये आता है तो क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. तो हम कैसे बनाएंगे? ओवर हियर यू विल यूज सब्जेक्ट V1 एंड V5 एंड देन ऑब्जेक्ट. उस स्ट्रक्चर का यूज करके बनाएंगे. सिट डाउन, अभी आपको समझ में आ जाएगी. सरताज, कैन यू टेल हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? राम, देखिए बहुत सिंपल है. राम, राम अपना काम करता है तो राम डज हिज वर्क हो गया. दैट्स हाउ वी विल ट्रांसलेट. अभी हम बताएंगे डायरेक्ट, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा. मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगी. डायरेक्ट नहीं, पहले आप इसे समझिए एंड आफ्टर दैट आई विल टीच अबाउट दैट. क्योंकि इससे वो काफ़ी भिन्न है. तो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति रूफ पे नहीं जा सकता है. पहले स्टेप बाय स्टेप यू विल हैव टू गो. आइए, राम डज हिज वर्क. वे लोग अपना घर बनाते हैं. दे मेक देयर हाउस. दे मेक देयर हाउस हो गया. एंड लास्ट, वह अपना खाना बनाती है. कोई महिला है चाहे कोई लड़की है, वो अपना खाना बनाती है. नाउ सी कुक्स हर फूड हो गया. ये आपको समझ में आई? ये 3 सेंटेंस आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से समझ में आया? अब हम इंटर करेंगे इसमें. ट्राई टू कंप्लीट. ऊपर देखिए, ऑन इज यूज्ड आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव. एंड नाउ टेल मी वन थिंग, हिज एंड देयर एंड हर. टेल मी, स्टैंड अप. आप मुझे बताइए, ये जो हिज है, देयर है, हर है, ये क्या है? क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव. तो ये सब के सब किसका सेंस दे रहा है? अपना का, अपने की, यही ना. अब देखिए ना, सिट डाउन. इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ना, आपको तो पता है, आप पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में. राम डज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां पे डज लगा हुआ है. राम डज हिज वर्क. नोट में लिखिए 1 नंबर. ऑन का यूज हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद किया जाता है. प्रिंस, आदर्श. सो प्रिंस, डू नॉट टॉक टू ईच अदर एंड ट्राई टू कंप्लीट सून. ऑन का यूज हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद किया जाता है. ट्राई टू कंप्लीट सून. डिड यू राइट? नाउ सरताज, डिड यू राइट? स्टैंड अप. मेक वन मोर सेंटेंस. वे लोग अपने घर में हैं. ट्राई टू ट्रांसलेट. वे लोग अपने घर में हैं. हाउ विल यू ट्रांसलेट? वे लोग अपने घर में हैं. हाँ. दे आर इन देयर हाउस. जैसे वह अपने घर में रहती है. सी लिव्स इन हर हाउस. मैं अपना काम नहीं करता हूं. आई डोंट डू माई वर्क.
अगर मैं कहूं कि वे लोग अपने काम को समय से नहीं करते हैं, सो हाउ विल यू ट्रांसलेट दे डोंट डू देयर वर्क टाइमली हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ चुके हैं पूरी तरीके से? नाउ सिट डाउन। अब हम इसका यूज करेंगे। यहां पे देखिए, इफ यू अंडरस्टूड वंस this one and after that you can make many sentences। जब भी आप on का यूज करेंगे तो हम किसके बाद on का यूज करेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी इधर आपको अभी मैंने बताया, राइट नाउ आई टोल्ड यू पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? मिस्टर फिरोज, स्टैंड अप एंड टेल मी दोज ऑल पोसेसिव एडजेक्टिव्स वंस अगेन। यस, योर, our and their, her, his, your, यही ना है बस। नाउ सिट डाउन। इट्स योर टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑन। चलिए अब ऑन को देखते हैं काफी शानदार ढंग से। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर स्टडिंग दिस यू कांट फॉरगेट दैट, सो केयरफुली स्टडी अबाउट दैट। Now write one more thing. Now let's see example. मैं I write two sentences and after that you will able to know about that in a more better way. मैं अपना काम करता हूँ। यह घर मेरा अपना घर है। थर्ड नंबर, वह लड़का आपका अपना बेटा है। वह मोबाइल उसका अपना मोबाइल है। Now ultimately I have just written 4 sentences and note down. Let me fix it here. One, two, three, 4. Try to complete. Do my work. I do my work. Now see, यह घर मेरा अपना घर है। अभी आप लोग लिख लिए हिंदी। मैं अपना काम करता हूं और दूसरा है यह घर मेरा अपना घर है। पहले आप लोग लिख लीजिए एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। पहले आप लोग लिख लीजिए सही से, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट? अभी राइट नाउ यू विल नो अबाउट दिस। अभी आपको पता चल जाएगी। नाउ सिट डाउन फिरोज। अब देखिए, यह घर मेरा अपना घर है। दिस
house, this house is my own house. Now see third number, 1 2 3 and 4. This house is my own house. वह लड़का आपका अपना बेटा है. That boy एक साथ में लिखा जाएगा. वह लड़का, that boy is आपका अपना बेटा है. That boy is your own son. Now see fourth number, वह मोबाइल उसका अपना मोबाइल है. फिर से इसको एक साथ में ही लिखेंगे. वह मोबाइल, that mobile is his own. This one his है, ये I है, I correct it. That mobile is his own mobile. Did you write? अब देखिए, इट्स योर टाइम टू अंडरस्टैंड. अब आप लोग इसे समझिए. Did you write? Good. अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, वह मोबाइल एक साथ है. वह मोबाइल तो डैट मोबाइल, वह लड़का तो डैट बॉय, डैट मोबाइल, यह घर तो दिस हाउस हो गया. बट ऊपर वाला जो है वो डिफरेंट है. पहला फिरोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट. अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंसेस को देखने के बाद हमें एक चीज ज्ञात होता है. किसी इस सेंटेंस में क्या है ना कि अपनापन का भी बोध हो रहा है. क्या इसके अलावा सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस हो तो उसके ऊपर बल भी दिया जा रहा है. जैसे यहां देखिए, पहला सेंटेंस, यह घर मेरा अपना घर है. ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें देखिए, यह घर मेरा अपना घर है. अपनेपन का भी बोध हो रहा है. मतलब आप फोर्स दे रहे हैं, जो ये घर है ना मेरा अपना ही घर है. और जो पहला सेंटेंस है इसमें तो बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अपना काम करता हूं. तो इसमें सॉरी. अब देखिए तीसरा, वह लड़का आपका अपना बेटा है. वह लड़का आपका अपना बेटा है, तो इसमें हम फोर्स करेंगे नहीं. वह लड़का जो दिख रहा है वह आपका अपना बेटा है. So that's how. So that's how we will make sentences. Did you understand? I give you more example. Then after that, you all will able to understand in a more better way. आपको ये अभी क्लियर हुई ये सारी चीजें. कोई भी सेंटेंस है जिसमें अपनापन का भी बोध होता है, और इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो फोर्स भी दिया जा रहा है. लेट्स मूव ऑन. एक चीज और यहां पे देखिए, माई, योर, हिज. आप खड़े हो जाइए. आप मुझे बताइए, ये जो माई है क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है. प्रिंस, स्टैंड अप. ये बताइए, योर क्या है? पोसेसिव आदर्श. ये हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव. एक चीज मैं आपको बता दूं, आप पहले ही जान चुके हैं. सुनो, लिसन टू मी. हम हमेशा ऑन का यूज पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ही हम करेंगे. ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है कि आप हमेशा आएंगे, मेरे बाद ही आएंगे. अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इसकी आज्ञाओं का ये पालन कर रहा है ऑन. इसके पहले कभी नहीं आ सकता है. अब ये जो माई है पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद ही आया है कि नहीं है? ऑन. अब यहाँ देखिए, योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आपका आया है ऑन. यहाँ पर भी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ही आया है आपका ऑन. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ सिट डाउन. I give you some sentences and make.
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट टॉक टू ईच अदर। वह कुर्सी उसका अपना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन आई विल गिव यू होमवर्क। वह कुर्सी उसका अपना कुर्सी है। सेकेंड, यह कलम उन लोगों का अपना कलम है। वह घर उसकी अपनी घर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग इसे बना पाते हैं तो आई विल अंडरस्टैंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोग सही सही बना देते हैं इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं। एंड इट्स वेरी इजी, यू हैव रेड अबाउट कॉन्सेप्ट। ट्रांसलेट सुन। वह कुर्सी उसका अपना कुर्सी है। एंड देन यह कलम उन लोगों का अपना कलम है। एंड थर्ड नंबर, वह घर उसकी अपनी घर है। नाउ कंप्लीट सुन। डिड यू कंप्लीट? That chair is his own chair। वह कुर्सी उसका अपना कुर्सी है। That chair is his own chair। आइए देखते हैं दूसरे को। यह कलम, this pen is, उन लोगों का, देखिए उन लोगों का अपना कलम है तो सबके साथ आप हिज का यूज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका ये चेंज होगा। हाँ, तो दिस पेन इज देयर ऑन पेन, ऐसे बनाएंगे। दिस पेन इज देयर ऑन पेन। वह घर उसकी अपनी घर है। That house is हर, अब देखिए उसकी है, इसका मतलब कोई लड़की है तो इसलिए यहां पे हम हर का यूज करेंगे। That house is her own house। That house is her own house। So that's how we will make sentences। And how many of you have made these all sentences correctly? Raise your hands। 1 2 3 4 5। And how many of you have made these all sentences incorrect? Raise your hands। Incorrect, yes, good, yes। Let me tell you one thing, actually weather is changing, so my health is not well fully, but I taught you all. I hope you all have understood regarding this. In today's class we couldn't revise and practice tenses, but in next class we will revise and practice those all tenses। but मैं आशा करता हूं कि ये जो ऑन का यूज है आप लोग काफी बेहतर ढंग से समझे होंगे। क्लियर हुआ है? इट्स योर टाइम टू नोट डाउन होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक 10। Yesterday you all have not studied,
but tomorrow I may take your assessment from those all verbs. So by going at your home, you have to memorize those all verbs brilliantly. Yes, I may take your assessment tomorrow from those all verbs. यस जिन लोगों के पास अगर वो नहीं होगा तो फिरोज से चाहे जिनके पास होगा उन लोगों से लेकर हाँ कल कल मैं टेस्ट ले सकता हूँ. अब इट इज़ अप टू मी. तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करके आना है आप लोगों को. नहीं कल. नाउ नोट डाउन क्वेश्चंस. मेक 10 sentences from on. So my dear students, that's all for today and see you tomorrow.